Hello students, we will continue with our lesson 5 Principles of Inheritance and Variation. Students, in our previous video, we discussed about the topic genetic disorders. Genetic disorders are grouped into two categories, Mendelian disorders and chromosomal disorders. Students, ਅਸੀਂ Mendelian disorders ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, autosomal disorders, Mendelian disorders and sex-linked disorders. इन्हां बारे ਅਸੀਂ अपनी प्रीवियस वीडियो च डिस्कस कर चुके हैं. ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दी एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसीमिया, एंड सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दी एग्जांपल है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस about the chromosomal disorders. So students, chromosomal disorders, they are caused due to absence of one or more chromosomes or excess of one or more chromosomes or abnormal arrangement of one or more chromosomes. ਜਿਹੜੇ students chromosomal disorders ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? Chromosomal disorders are caused due to absence of one or more chromosomes or due to excess of one or more chromosomes or due to abnormal arrangement of one or more chromosomes. ये तीन reasons हैगे आ जेडे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. ਹੁਣ स्टूडेंट्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दे आर ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. सो स्टूडेंट्स ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ऑटोसोम्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ऑटोसोम्स होंगे हैं. 44 मीन्स 22 पेयर्स एंड एक जड़ा पेयर हैगा वो सेक्स क्रोमोसोम्स दा हुंदा है एंड सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज एलोसोम्स. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटोसोमल डिसऑर्डर. 44 या 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे ह्यूमनस दे विच. ਤੇ ਜੇ ਆਟੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਟੋਸੋਮਸ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਸੋਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਆਟੋਸੋਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. We will discuss about the Down syndrome. Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome number 21. Chromosome number 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਪੀ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਕਿ that's why this disorder is also known as trisomy of 21. ਜਿਹੜਾ 21 पेयर है ਤਾਂ it means ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 2 ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਸੋਮਸ ਹੈਗਾ पेयर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 chromosomes ਹੋ ਗਏ. that is why this disorder is also known as trisomy of 21 and this is developmental disorder. Instead of 2 to 3 2 copies of genes ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 copy of genes. क्रोमोसोम नंबर वैसे कितना है, 46 हैगा या ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ क्रोमोसोम ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ क्रोमोसोम्स ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. the person suffering from down syndrome ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 47 क्रोमोसोम्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਫੇਸ ਹੈ, ਚਪਟਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਾਲ ਬ੍ਰੌਡ ਨੋਜ਼, ਛੋਟੀ ਔਰ ਬ੍ਰੌਡ ਚਪਟੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਥਰਡ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸ਼ੇਪਡ ਉਹਦੇ ਈਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੇ ਆ. फोर्थ ਉਹਦਾ सिम्पटम है लार्ज टंग, लंबी जीभ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
एंड फिफ्थ हैगा या अपवर्ड स्लांटिंग आईज विथ स्मॉल फोल्ड्स ऑफ स्किन इन द कॉर्नर। सिक्स्थ हैगा या ओदी जिहड़ी पाल मैं हथेली है ओदा साइज जिहड़ा इंक्रीज्ड हुंदा या। सैवंथ हैगा या लोअर लिप प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, जिहड़ा हेठां दा जिहड़ा लिप हुंदा हैगा या वो बाहर नूं प्रोजेक्टेड आउटवर्ड हुंदा है। सो स्टूडेंट्स ये 7 सिम्पटम्स हो गए द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम एंड सच पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स। कई उन्होंने मेडिकल प्रॉब्लम्स होंदियां हैं द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, जिमें ओदा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लुकीमिया, हार्ट डिफेक्ट्स, hearing loss, hypothyroidism and various eye problems होंदियां the person suffering from the Down syndrome. So students ये तो होगी autosomal disorder दी example Down syndrome। हुण असीं डिस्कस करांगे about the sex linked chromosomal disorder। उहदियां दो examples है Klinefelter syndrome and second is Turner syndrome। स्टूडेंट्स पहला असी लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिहड़ा है ओदे बारे डिस्कस करांगे। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप ऑफ 47। जिवें मेल हैगा या वैसे स्टूडेंट्स किन्ने क्रोमोसोम्स हुंदे आ 46। एक जिहड़ा एक्स क्रोमोसोम है वो होर आ जांदा हैगा या ते टोटल कैरियोटाइप किन्ने बन गए, किन्ने टोटल क्रोमोसोम 47। यानी कि एक्स एक्स है जे फीमेल दे विच XX हुंदा है और मेल दे विच की हुंदा हैगा या कि 40 मेल दे विच की है, फीमेल दे विच दा 44 प्लस XX है फीमेल दे विच, ते मेल दे विच की हैगा या 44 प्लस XY। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2x क्रोमोसोम्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ 1y क्रोमोसोम्स। ਮੇਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ x क्रोमोसोम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ क्रोमोसोम्स ਬਣ ਗਏ 47 क्रोमोसोम्स ਬਣ ਗਏ। सो सच मेल्स आर नोन एज 44 autosomes plus XY। such males are known as genetic males। such an individual develops as males often not knowing they have an extra chromosomes। मेल ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲਾਈਨਫੇਲਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸਕੂਲਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पर उन्होंने विच कुछ फैमिनाइन करैक्टर्स होंगे है जिमें डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इनू गाइनिकोमेस्टिया भी कहते हैं एंड सच इंडिविजुअल्स आर स्टीराइल। स्टीराइल मतलब कि वो फर्टाइल नहीं होंगे, दे कांट प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, दे आर नॉट प्रॉपर मेल्स एंड दिस इज यूजली कॉज्ड बाय द नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब की है कि जदों सेक्स क्रोमोसोम्स जिहड़े आ दे फेल्स टू सैपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। और इन्हां दा हुणी आपसे डिस्कस किया है कि मैस्कुलाइन इन्हां दी ओवरऑल मैस्कुलाइन डिवेलपमेंट हुंदी है पर कुछ फैमिनाइन करैक्टर्स होंगे हैं जिवें डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हुंदी है, इन्हां दी टेस्टिस फुली डिवेलप नहीं हुंदियां, इन्हां दा जिहड़ा हैगा या कि स्टीराइल हुंदे हैगे। स्टीराइल मीनस दे are not fertile, can't produce the children। so students इन्हां दे विच की हुंदा हैगा या कि XY जिहड़ा हैगा या वो इकट्ठा ही एक ही गैमीट विच चले जांदा या सेपरेट नहीं हुंदा। दिस इज द केस ऑफ डिसजंक्शन एंड दिस लीड्स टू द लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये तुहानू स्टूडेंट्स किवें क्लीयर होएगा ये मैं तुहानू थोड़ा जिहा इत्थों क्लीयर कर दिंदी हैगी हां कि जिवें मेल है मेल दे विच 44 ऑटोसोम्स हैगे आ प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम्स हैगे आ। यदि फीमेल दे नाल मेटिंग होई फीमेल हैविंग 44 ऑटोसोम्स प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम्स। सो गैमीट्स बने 22 प्लस XY यानी कि दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स एक ही गैमीट विच चले गए ते दूसरे गैमीट जिहड़ा हैगा ओदे विच
कोई भी क्रोमोसोम नहीं, सैक्स क्रोमोसोम नहीं गया। ये फीमेल्स है, फीमेल्स दे विच उसी तरह ही टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स बने, 22 ऑटोसोम्स है। एक गैमीट विच एक एक्स क्रोमोसोम चले गया, दूसरे विच दूसरा एक्स क्रोमोसोम चले गया। हुण एक ही गैमीट विच दोनों एक्स वाई चले गए, ये सैपरेट नहीं होए, ठीक है, इन्हां विच नॉन डिसजंक्शन करके। ते फिर जदों ए वाले और मेल हैविंग दिस गैमीट और ओ बने तो फिर की होएगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई जेड़ा हैगा या वो बनया और ये की है लाइनफेल्टर सिंड्रोम जेड़ा हैगा या वो इंडिविजुअल नु डिजीज होएगी। सो एक्स वाई जेड़े हैगे वो इकट्ठे ही गैमीट विच चले गए, सैपरेट नहीं होए, एंड दिस इज द केस ऑफ डिसजंक्शन, दिस लीड्स टू द लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मेल्स जेड़े हैगे दे आर अनएबल टू मेक स्पर्म एंड आर स्टेराइल, सो दे कांट प्रोड्यूस द चिल्ड्रन। और उन्हां दी बॉडी ते होर सिम्पटम की हैगा या जेड़े परसनस नू लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुंदा हैगा या कि उन्हां दी फेशियल और जेड़े बॉडी हेयर्स हैगे उन्हां दी लो ग्रोथ है, मतलब उन्हां दी बॉडी ते और फेस ते बहुत घट वाल हुंदे हैं। उन्हां दी फेमिनाइन करैक्टर हो गया कि ब्रैस्ट दी डिवेलपमेंट हुंदी है। अगे आ गया कि उन्हां दी टेस्टिस स्मॉल हुंदियां या उन्हां दी एवरेज हाइट है, हाइट ज़्यादा नहीं हुंदी, ग्रोथ घट हुंदी है। मैंटल रिटार्डेशन है, ब्रेन फुली डिवेलप नहीं हुंदा या और उन्हां दे विच फेमिनाइन करैक्टर्स हुंदे आ क्योंकि उन्हां दे विच एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हुंदा है। वैसे ही की हैगी आ दे आर लगदे हो मेल्स की तरह ही है, ठीक है, दीज आर जेनेटिक मेल्स, पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने करके इन्हां दे विच कुछ फेमिनाइन करैक्टर्स हुंदे आ, जिवें डेवलपमेंट ऑफ ब्रैस्ट हो गई ते बाकी इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸਕੂਲਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪੌਨਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨਫੇਲਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸ क्रोमोसोम। जिस तरह स्टूडेंट्स असी ये अपना डिस्कस किया सीगा, इत्थे थोड़ा जिहा ड्रॉ किया सीगा कि ये मेल है, फीमेल हैगा यार, कि जदों ये आपस दे विच इन्हां दी फ्यूजन हुंदी है तो फिर की बनेगा 44 प्लस एक्स ओ मीन्स एब्सेंट है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा। सो स्टूडेंट्स टर्नर सिंड्रोम जेड़ा हुंदा इट इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया, 44 तो ऑटोसोम्स हो गए। फीमेल्स दे विच वैसे की हुंदा दो एक्स क्रोमोसोम्स हुंदे हैं, सेक्स क्रोमोसोम, पर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया। सो ये जीनोटाइप हुंदा हैगा द पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। 44 प्लस एक्स ओ मीन्स एक एक्स एबसेंट हैगा या। ते इस तरह के जोड़े पीपल होंगे है जिन्होंने टर्नर सिंड्रोम है दे डिवेलप एज फीमेल्स, पर उन्होंने जो ब्रैस्ट होंदियां दे आर अंडर डिवेलप, पूरी तरह डिवेलप नहीं होंदियां हैगियां या उन्होंने ओवरीज रूडीमेंटरी होंदियां हैगियां या कोई उन्होंने ओजीनेसिस नहीं होंदा, कोई ओवम नहीं प्रोड्यूस होंदा, नो मैंस्ट्रुअल साइकिल उन्होंने विच नहीं होंदा हैगा या। एंड सच टाइप ऑफ फीमेल्स आर स्टेराइल। स्टेराइल मीनस अनफर्टाइल, वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पादियां क्योंकि जब एग ही प्रोड्यूस नहीं करना हैगा या तो फिर वैसे देखने को फीमेल्स हैगियां या कि अंडर डिवेलप ब्रैस्ट हैगी या रूडीमेंटरी ओवरीज हैगियां पर ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही या दे आर स्टेराइल, दे कांट प्रोड्यूस द चिल्ड्रन। और इस तरह दी जिहड़ियां फीमेल्स हैगियां या जिन्होंने टर्नर सिंड्रोम हैगा या उन्हां दी मैंटल रिटार्डेशन हुंदी है, ब्रेन फुली डिवेलप नहीं हैगा या उन्हां दे सैकेंडरी सैक्सुअल करैक्टर्स जिहड़े आ वो एबनॉर्मल होंदे है और उन्हां दी वेब्ड नैक होंदी है। सो स्टूडेंट्स ये सिम्पटम्स सीगे टर्नर सिंड्रोम दे। पहले एक बार फिर मैं तुहानूं ये क्लीयर कर दिंदी हैगी आ, सैक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जिहड़े हैगे दो हैगे आ, लाइनफेल्टर ते टर्नर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम दे विच की हुंदा है कि एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जांदा हैगा या ते सच टाइप ऑफ मेल्स आर नोन एज जेनेटिक मेल्स हैं। देखण नूं मेल्स हैगे आ उन्हां दे मैस्कुलाइन
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਮੀਨਾਈਨ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿਸ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਦੇ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮੀਨਾਈਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਆ ਰੂਡੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਗ ਓਜੀਨਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਓਵਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਰਾਈਲ, ਦੇ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਆਟੋਜ਼ੋਮਲ ਐਂਡ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ। ਆਟੋਜ਼ੋਮਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ ਆਫ 21 ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਨਫੈਲਟਰ ਐਂਡ ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much, students.